السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں قربت جانا بائی مرحا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 27۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، اس ناول کا کون سا کریکٹر آپ کو سب سے زیادہ پسند آ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس ناول کو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو چلیے اس ناول کو ہم آگے شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد زیام اپنے کمرے میں چلا گیا اور باران اپنے روم میں جانے کی بجائے گیسٹ روم میں چلا گیا۔ گیسٹ روم میں جاتے ہی وہ اپنا لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گیا، اور ان دنوں میں اگر اس کا تالیہ سے سامنا بھی ہوتا تھا تو وہ نظر انداز کر دیتا، اور تالیہ میں بھی ہمت نہ پیدا ہوتی تھی کہ وہ باران سے بات کرے۔ آج پتہ نہیں کہاں سے بہت ہمت جمع کرتے تالیہ چلتی ہوئی گیسٹ روم کے پاس آتی، آرام سے دروازہ کھول کے، جس پر باران نے ایک نظر اٹھا کر سامنے دیکھا اور اگلے ہی پل وہ نہایت مہارت سے اسے اگنور کر گیا۔ تالیہ کی حالت اب کافی بہتر ہو گئی تھی، اس لیے وہ باران کو ہر حال میں منانے کا ارادہ کر کے آئی تھی۔ مخصوص چال چلتی ہوئی صوفے پر اس کے پاس آتی، اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، مگر باران نے ایک نظر بھی اس پر نہ ڈالی۔ مسلسل نظر انداز ہونے کی صورت میں تالیہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی، باران کے پاس ہی صوفے پر بیٹھتی، اس کے شانے پر اپنا سر ٹکاتی، اس کے ایک بازو کو اپنے ہاتھوں میں لے گئی۔ اسے اپنے اتنے پاس دیکھتے باران نے اچھے سے محسوس کیا، پھر اگلے ہی لمحے باران نے لیپ ٹاپ پر تیز تیز انگلیاں چلانی شروع کر دی، جبکہ باران کا جان کر بھی انجان بننا تالیہ سے برداشت نہ ہوا، اور اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ تالیہ کی بھیگی اور دکھی آواز باران کے سماعتوں سے ٹکرائی تو اس کے لیپ ٹاپ پر تیزی سے چلتے ہاتھ رکے۔ اسے آج تم نہیں آپ کہہ کر مخاطب کرنے لگی۔ تو تم کیا کہتی ہو نہیں ہونا چاہیے؟ باران نے الٹا سوال پر سوال کیا، جبکہ چہرے پر بے رخی ابھی بھی تھی۔ نہیں، آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہو، تالیہ معصومیت سے بولی، اور باران کے بازو پر پکڑ مزید تیز کر گئی۔ تم چاہے تو جو مرضی کرو، اور میں ذرا سا ناراض بھی نہ ہوں۔ باران نے لیپ ٹاپ کی بلیک اسکرین کرتے اسے دیکھا، جو اس کے ساتھ لگی خاموش آنسو بہاتی نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ ناراض ہونا تو ٹھیک ہے، مگر آپ اب مان بھی تو نہیں نہ رہے، تالیہ بیچارگی سے بولی، جیسے اسے اب سمجھ نہ آئی ہو کہ وہ کیا کرے۔ تم نے منایا ہی کب ہے؟ باران کا لہجہ سنجیدہ اور سرد تھا، تو اسی وقت تالیہ کے گرتے آنسو اس کی شرٹ کے بازو میں جذب ہوئے، اور باران کو بھی محسوس ہوئے۔ اگر میں مناؤں تو کیا آپ مان جائیں گے؟ باران حیران تھا، تالیہ کے لہجے میں اتنی مٹھاس کہاں سے آ گئی، ورنہ پہلے تو وہ اسے کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ کیا یہ اب باران کے پیار کا اثر تھا؟ اگر پیار سے مناؤ گی تو سوچا جا سکتا ہے، باران تھوڑے نخرے سے بولا، تاکہ دیکھے تو صحیح تالیہ کتنے اچھے طریقے سے اسے مناتی ہے۔ اچھا، آپ میری طرف دیکھیں گے تو میں مناؤں گی آپ کو۔ اپنی آنکھوں میں موجود نمی کو پرے ڈھکیلتی تالیہ اس کا بازو چھوڑتی اسے دیکھنے لگی، جس کی نظریں لیپ ٹاپ پر مرکوز تھی۔ تو باران اسی وقت لیپ ٹاپ کو پیچھے کرتا فارمل چہرے سے اسے دیکھنے لگا۔ پہلے مجھے ایک بات تو بتاؤ۔ باران کی پوری توجہ اب تالیہ کی جانب مرکوز تھی۔ جی پوچھیں۔ تالیہ دھیمی آواز میں بولی، جانتی تھی کہ باران نے کس بارے میں بات کرنی ہے۔ تم سابقہ نشہ کیوں کرتی تھی؟ باران کا انداز سنجیدہ تھا، جبکہ تالیہ کے گلے میں ابھرتی گلٹی معدوم ہوئی۔ اپنے ماضی کو بھلانے کے لیے تالیہ نے جواباً سادہ لہجے میں جواب دیا۔ تو باران نے گھور کر اسے دیکھا۔ کس ماضی کو؟ کیسا ماضی؟ باران کے تعجب سے پوچھنے پر تالیہ نے گہرا سانس لیتے بولنا شروع کیا، اور ساری بات اس کی گوش گزار کی کہ کس طرح بائبل نے اسے ڈپریشن میں ڈالا، کس طرح شروعات ہوئی، اور کس طرح وہ اسے چھوڑ گیا، اور تالیہ اس نشے میں لگ گئی۔ بائبل کی وجہ سے وہ اتنی زہریلی بن گئی تھی، ورنہ تالیہ پہلے بالکل ایک سادی سی لڑکی تھی۔ تالیہ، تم اس گھٹیا شخص کو بھلانے کے لیے اس نشے پر لگ گئی۔ تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ اس نشے میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے؟ باران کرب سے بولا۔ اس کا غم دوبارہ سے تازہ ہو گیا تھا۔ تالیہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ باران اس کی وجہ سے کتنا ٹوٹ گیا تھا۔ باران، میں جانتی ہوں، مگر تب مجھے اپنی جان عزیز نہیں تھی، اور ویسے بھی میں اس دن ڈاکٹر کے پاس ہی جانے والی تھی تاکہ اپنا اسٹمک واش کروا لوں، وہ اپنے جسم سے زہر نکلوا لوں، مگر اس سے پہلے ہی یہ سب ہو گیا۔ تالیہ، تم اب باران خانزادہ کی جان ہو، یہ کیسے بھول سکتی ہو تم؟ اگر تمہیں اپنی نہیں فکر تو کم سے کم میری ہی کر لو۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو بتاؤ میں کیسے جیتا؟ باران تڑپ کر بولا۔ تو تالیہ نے باران کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ باران، مجھے معاف کر دیں، میری غلطی ہے، آپ چاہے تو مجھے سزا دے لیں۔ تالیہ کا لہجہ التجائیہ تھا، اس سے غلطی ہوئی تھی، مگر وہ اب سب کچھ صحیح کرنا چاہتی تھی۔ وعدہ کرو کہ دوبارہ کبھی ایسا نہیں کرو گی، باران نے بڑے مان سے کہا۔ تو تالیہ نے اس کے عین مطابق حامی بھری۔
मैं वादा करती हूँ कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। मुझसे कुछ छुपाओगी भी नहीं। बारान ने जल्दी ही उसे अपने हिसार में लिया। पक्का वादा, कभी कुछ नहीं छुपाऊंगी। उसके साथ लगते ही तालिया के 2 आंसू फिर से बहे। हर बात मुझे बताओगी तुम? जी, मैं हर बात आपको बताऊंगी, बस आप नाराज मत होइएगा। तालिया ने चेहरा उठाकर बारान की बियर्ड को देखा। ठीक है, लेकिन तुम्हें सजा मिलेगी, वो भी बेडरूम में, और तुम एहतजाज भी नहीं करोगी। बारान ने फौरन से उठकर तालिया को अपनी बाहों में उठा लिया। अब भी तो वादा करो। बारान के ज़ोमानी कहने पर तालिया ने उसकी बात का मतलब समझते उसी वक्त उसके सीने में मुंह दे दिया, तो बारान उसे उठाए चलता हुआ अपने बेडरूम की जानिब बढ़ गया। अब उसे अपने तरीके से सज़ा भी तो तालिया को देनी थी। तकरीबन रात के 3 बजे का वक्त हो रहा था, मगर हानम के पेट में भूख की वजह से इतने चूहे दौड़े कि अब वो तंग आकर उठकर बैठ गई। उफ अल्लाह, ये मुझे आज इतनी क्रेविंग क्यों हो रही है? हानम ने अपने दोनों हाथ पेट पर रख लिए और साथ ही उसने एक नज़र बेखबर सोते आर्यान पर डाली, जो उसके बेड पर बनाए बॉर्डर के उस पार सोया हुआ था। खुद तो इतने आराम से सोए हुए हैं, इतना ही कर सकते कि एक नज़र उठकर बीवी को देख लूँ, आखिर सोई भी है या भूख से मर रही है। हुनूस अंदाज में उसे देखती हुई मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। फिर अगले ही लम्हे वो अपने पेट में होती, गड़गड़ से मजबूर होती, बिना कुछ सोचे आर्यान की जानिब लपकी। आर्यान उठे ना, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। खुद तो घोड़े गधे बेचकर सो रहे हैं, थोड़ी बीवी का ही ख्याल कर ले। हानम उसकी तरफ बढ़ती, अपने बॉर्डर को क्रॉस करती, उसे बाजू से पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगी। वो वाकई इतना बेखबर सोया हुआ था कि उसके चेहरे पर एक शिकन न था। ये देखते ही हानम थोड़ा सा उस पे झुकी। जब अगले ही लम्हे आर्यान ने अपने बाजू उसकी कमर में हायल करते ही इसे एक झटके से खुद पर गिराया, जबकि इस अचानक अफ्तादगी पर हानम को समझ ही ना आई कि उसके साथ हुआ क्या है। अलबत्ता आर्यान कच्ची नींद में था, इसलिए उसकी एक पुकार पर ही उठ गया। एक तुम्हारा ख्याल ही तो रहता है, और तुम्हें अब भी गिला है मुझसे? आर्यन पाशा ने उसे खुद पर गिराए अपनी बंद आँखों से ही हल्का सा मुस्कुराते हुए उसे कहा, तो हानम जल्दी से उससे पीछे होने लगी। एकाएक उसके पेट में फिर से गड़गड़ हुई। आर्यन, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज़ आप मुझे कुछ खाने के लिए बना देंगे? हानम जल्द ही बेचारकों वाला मुंह बनाकर उसे दिखाने लगी, तो आर्यन का दिल चाहा उस पर टूटकर प्यार बरसाए। मेरी जान पूछ क्यों रही हो? हुक्म करो, ये बंदा गुलाम है तुम्हारा। अगर तुम्हारे लिए मुझे रातों को उठकर भी खाना बनाना पड़ा तो कभी इनकार नहीं करूँगा। आर्यन ने अपनी आंखें खोलते इतने प्यार से कहा कि हानम को अपना दिल मखसूस जगह से हिलता हुआ महसूस हुआ। वो इस वक्त खुद को हवाओं में उड़ते हुए महसूस करने लगी। बहुत खुशकिस्मत थी वो जो उसे आर्यन पाशा मिला था। तो फिर कुछ मज़े का बना लाए, मुझे बहुत भूख लगी है। हानम उससे दूर हुई तो आर्यन बेड से उठ खड़ा हुआ। ओके मैडम, सिर्फ 10 मिनट में ही आपका ऑर्डर आ जाएगा, थोड़ा सा इंतज़ार करें। अपने सीने पर एक हाथ रखकर नहायत अदब से बोलता हुआ अगले ही लम्हे दरवाजे से बाहर चला गया, और हानम अपने पेट में होती गड़गड़ को नज़रअंदाज करने के लिए अपना मोबाइल यूज़ करने लगी। आधी रात को आज वो पहली दफ़ा किचन में गया था, और पहली दफ़ा ही आधी रात को किसी के लिए खाना बना रहा था, वरना उसे रात को भूख नहीं लगती थी, और पानी उसके कमरे में ही होता था। 10 मिनट में सिर्फ पास्ता ही तैयार हो सकता था, इसलिए आर्यन पास्ता बनाने का सोचता जल्दी से कैबिन से चीज़ें निकालने लगा, और एक साथ वो फ्रिज से लेमन और पुदीना निकालता। मिक्सी में मिनट मार्गरीटा उसके लिए बनाने लगा। जल्दी जल्दी हाथ चलाते आर्यन ने तकरीबन 10 ही मिनट में ग्रीन सॉस पास्ता तैयार किया। ट्रे में एक तरफ पास्ते की प्लेट सजाई और दूसरी तरफ मार्गरीटा का भरा ग्लास रखे वो चलता हुआ अपने कमरे में गया। कमरे में दाखिल होते उसने लजीज खाना हानम के आगे पेश किया, तो इतने मज़े के पास्ते को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। जल्दी से मोबाइल को साइड पर रखते हानम ने खाना शुरू किया, और आर्यन ने उस भूखी को खाते हुए देखा जो एक के बाद दूसरा चम्मच मुंह में डाले जा रही थी। सुबह नाश्ते के वक्त पर वो सब ही डाइनिंग टेबल पर बैठे मज़ेदार नाश्ते से लुत्फ़अंदोज़ होने लगे। सिवाय आर्यन के वहाँ सभी मौजूद थे। उसे न जाने सुबह सुबह कौन सा काम आ गया जो उसे जाना पड़ा। बच्चों, हमने तय किया है कि अब तुम लोगों का वलीमा कर दिया जाए, पाशा साहब ने नाश्ते के दौरान बारान और ज़ियाम की जानिब देखते कहा, तो उन दोनों के चेहरे खिल उठे। ठीक है अंकल, फिर परसों का फंक्शन रख लेते हैं। ज़ियाम जल्दी से बोला, तो पाशा साहब ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, परसों का ही फंक्शन रखते हैं, परसों सब फ्री है, वैसे भी संडे है। इस बार मामू जान बोले और सब ने हामी भरी। फिर नाश्ता करते ही सब अपने अपने कामों में चले गए, और नूरे ताली और हानम बर्तन उठाती किचन में आ गई।
तुम लोगों को नहीं लगता हमने कब से मिलकर इंजॉय नहीं किया। लास्ट टाइम हम नूरे का निकाह से पहले इंजॉय करने बाहर गए थे, उसके बाद हमने कहीं का प्लान ही नहीं किया। किचन की शेल्फ से टेक लगाती हानम उन दोनों की तवज्जो खींच गई। हाँ, कह तो तुम ठीक ही रही हो। कब से हम कहीं इकट्ठे बाहर आउटिंग करने ही नहीं गए। तालिया ने हामी भरी। पहले वो हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा बाहर घूमने जाया करती थी। तो फिर क्यों ना प्लान बनाया जाए। हानम मज़े से बोली। तो तालिया ने हाँ में सर हिलाया। मगर हानम, मैं नहीं जा सकूंगी। बर्तों को बर्तनों को जगह पर रखती नूरे इस बार हानम की तरफ देखती बोली। तो उन दोनों ने नासमझी से उसे घूरा। तुम क्यों नहीं जा सकती। हानम और तालिया दोनों ने एक साथ पूछा। तो नूरे ने छोटी सी वजह बताई। ज़ियाम जाने नहीं देंगे मुझे, अगर मैं गई भी तो वो साथ जाएंगे। ऐसे में अगर वो साथ गए तो हमें मज़ा भी नहीं आएगा। नूरे ने मुंह बसोरते वजह बताई। तो पहले वो दोनों खामोश रही, मगर फिर हानम की चुटकी से इस मसले का हल निकला। तो ज़ियाम को लेकर कौन जाएगा नूरे, और उसे बताएगा कौन। हानम ने शौक अंदाज में महशाने उचकाते कहा। उसके बोलते ही इस बार उन दोनों ने नासमझी से उसे देखा। मतलब हानम, मैं जहाँ जाऊंगी उन्हें तो पता ही होगा, वरना ना बताकर गई तो मेरा कीमा बना देंगे। नूरे ने सोचते ही अपना सर झटका। परेशान क्यों होती हो नूरे, वो भी मेरे होते हुए। हानम ने फर्जी कॉलर झाड़े, जिस पर तालिया ने मुस्कुराकर उसे घूरा। जानती थी कोई उल्टा सीधा ही आइडिया देने वाली है वो। हम में से कोई भी अपने अपने शौहर को कुछ नहीं बताएगा, वरना वो हमें अकेले तो जाने नहीं देंगे। इसलिए आज रात तुम दोनों अपने अपने हस्बैंड को कमरे से बाहर निकाल दोगी और बोलना कि जाए टेरेस पर जाकर सोए। मैं कमरे में नहीं आने दूंगी आज। हम हानम ने हाथ हिलाते हुए बात का आगाज किया। तो उन दोनों ने आंखें छोटी करते हानम को घूरा। कह तो ऐसे रही थी जैसे बहुत ही आसान काम हो। हम छुप कर जाएंगे हानम, नूरे ने मासूम से सवाल किया। हानम, तुम जानती हो ये मुमकिन नहीं, बिना वजह के हम उन्हें कैसे कमरे से बाहर निकाल दे। तालिया ने भी उसकी बात पर एतराज़ किया। पागलो, मेरी पूरी बात तो सुन लो। प्रॉपर प्लानिंग से हम सब कुछ करेंगे और आज पूरी रात बाहर जाकर मज़े करेंगे, और तो और किसी को पता भी नहीं चलेगा। हरम झुकती हुई बोली चहकती हुई बोली, जानती थी कि उसका काम तो आसान है, और ये कैसे मुमकिन होगा हानम। तालिया ने तीखा मुस्कुराते हुए दोनों हाथ अपनी कमर पर रख लिए। तो हानम ने उन दोनों को अपने करीब करते सारा प्लान बताया और उन दोनों को समझा भी दिया कि उन्होंने असल में करना क्या है। आज हमारी जान और आर्यान की मामा ही सिर्फ शॉपिंग पर गई थी, और बाकी सबका इरादा कल शॉपिंग पर जाने का था, क्योंकि बारान की छोटी बहन भी बाहर के मुल्क से आ रही थी और उसने स्पेशल कहा था कि उसके बगैर शॉपिंग न की जाए। इसलिए आज वो तीनों अपने बनाए मंसूबे को तश्कील देती पूरे 8 बजे डिनर के बाद अपने अपने कमरों में चली गई, जबकि ज़ियाम, बारान और आर्यान हॉल में बैठे परसों अपने वलीमे की प्लानिंग करने लगे। तकरीबन मज़ीद 15 मिनट और वेन्यू को डिसाइड करते वो अब तीनों एक साथ अपने अपने कमरे की तरफ और बढ़े। कमरे का दरवाज़ा खोलकर आर्यान पाशा ने अपने कदम अंदर की जानिब रखे, जब ढेर सारे धुआं ने उसका इस्तकबाल किया। एकदम से एक हाथ अपने मुंह पर रखते हुए बुरी तरह से खांसा। ये इतना धुआं क्यों हो रहा था, और हानम कहाँ थी, कुछ नज़र क्यों नहीं आ रहा था। हानम, हानम कहाँ हो। हानम, तुम कमरे में हो। अपनी आंखों के आगे हवा की तरह हाथ फैलाते आर्यान ने बुलंद आवाज़ें लगानी शुरू की। तो हानम किसी जिन की तरह एकदम से उसके सामने ज़ाहिर हुई। क्या हुआ आपको, आप खांस क्यों रहे हैं। हानम ने धुएं से ही उसे खांसते देख जानबूझकर कहा, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा इतना धुआं क्यों कर रखा है अंदर। आर्यन ने इस धुएं में बमुश्किल अपनी आंखें खोलते उसे देखते पूछा। आर्यन को सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। इतने धुआं में पता नहीं वो कैसे इतने आराम से खड़ी थी। वो तो मैंने अगरबत्ती लगाई है पूरे कमरे में। हानम ने झट से उसे अपना कारनामा बताया। क्यों लगाई तुमने अगरबत्ती, देखो अब कितना धुआं हो गया है, और ये अजीब सी स्मेल। आर्यन ने एक हाथ से अपने नाक को बंद कर लिया और दूसरा हाथ अभी भी वो धुआं पीछे करने के लिए हवा में उड़ा रहा था। वो ना, कल रात को मुझे अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी आपके कमरे से, तो मुझे लगा ज़रूर आपके विला में जिन्नात का कब्ज़ा होगा। हरम थोड़े डरे हुए और आरामदह लहजे में बोली। तो आर्यन उसे सख्त नज़र से घूरने लगा। जहाँ तुम जैसी चुड़ैल हो वहाँ जिन्नात भला आ भी सकते हैं। आर्यन हल्की आवाज़ में उसे घूरते हुए बड़बड़ाया। आपने कुछ कहा आर्यन। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि हानम के कानों तक ना पहुँच सकी, इसलिए वो झट से पूछ गई। हानम, कोई जिन्नात नहीं है, बंद करो तुम इस अगरबत्ती को और इस धुएं को बाहर निकालो। आर्यन ने कमरे में मौजूद खिड़की और बालकनी के दरवाजे पर नज़र डाली, जिसे पूरी तरह बंद कर रखा था। नहीं आर्यन, वाकई यहाँ पर जिन है, मैं अगरबत्ती बंद नहीं करूँगी।
हानम इर्द गिर्द देखती अटल लहजे में बोली, जबकि आर्यन को ऐसा लगा जैसे वो 1 मिनट भी यहाँ खड़ा रहा तो बेहोश हो जाएगा। हानम, मेरा सांस रुक रहा है, तुम पागल तो नहीं हो गई? बंद करो इसको जल्दी। और ये अगरबत्ती कौन सी जिन भगाती है? आर्यन इस बार दरश्ते लहजे में बोला। उसे अब उलझन होने लगी थी उस बढ़ते धुएं से। आर्यन, आपको मसला हो रहा है तो आप चले जाए, तो मैं तो बंद नहीं करूंगी। चले निकल जाए कमरे से बाहर। तुम मुझे ही मेरे कमरे से बाहर निकालोगी? उसकी दीदा दिलेरी पर आर्यन फकत उसे घूर कर ही रह गया। जी बिल्कुल, और अगर आप ना गए तो मैं आपको विला से भी बाहर निकाल सकती हूँ। हानम मगरूराना अंदाज में बोलती उसकी सिमत बढ़ी और उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे की जानिब ढकेलने लगी। चले बाहर, जल्दी से निकले, और अब सुबह आइएगा कमरे में। हानम, मैं पूरी रात कहाँ गुजारूंगा? आर्यन को एकदम से परेशानी हुई, गोया अब वो कहाँ पर सोएगा। मुझे नहीं पता, लेकिन आप यहाँ नहीं आएंगे। मैं लॉक लगाने लगी हूँ, चले निकले कमरे से। हानम ने उसे एक झटके में कमरे से बाहर निकालते अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया, जिस वजह से बेचारा आर्यन खांसता हुआ दरवाजे को ही घूरता रह गया। और अंदर हानम ने जल्दी से अपने बनाए ग्रुप पर मिशन डन का मैसेज टाइप करते सेंड कर दिया। तालिया, मुझे बताओ तो सही हुआ क्या है? बारान कब से उसकी नाराज़गी की वजह पूछ रहा था, मगर मजाल है जो तब से उसने अपना मुंह भी खोला हो। तालिया, कुछ बोलो तो सही, मुझे बताओ कि हुआ क्या है, क्यों नाराज़ हो तुम मुझसे? ये भी मैं आपको बताऊं? खुद नहीं पता? बारान के दोबारा पूछने पर तालिया तड़क कर बोली, जबकि मुंह अभी भी फुला हुआ था। यार, थोड़ा सा बता दो मुझे, क्या पता हो, तुम क्यों नाराज़ हो? बारान ने उसके हाथों को अपनी गिरफ्त में लेना चाहा, मगर इससे पहले ही तालिया ने उसके हाथ झटकते रुख मोड़ लिया। बीवी को नाराज़ कर दिया और वजह भी नहीं पता आपको? बीवी वजह तो बताए, बीवी को मना भी लेंगे। बारान शरारती अंदाज में बोलता उसे जल्दी से हक करने लगा तो बेक वक्त तालिया ने रुख मोड़ते उसे देखा। पीछे हटे, ज़्यादा मत चिपके। भूले मत, मैं नाराज़ हूँ आपसे। तालिया बेरुखी से बोलती उसे खुद से दूर कर गई। हाँ तो मैं मना रहा हूँ ना मेरी जान, कोई ज़रूरत नहीं है, अब भी मसरूफ़ हो जाए, आप भी मसरूफ़ हो जाए। मैंने कोई 10 दफ़ा आपको कॉल की, मगर आपने एक दफ़ा भी रिसीव न की। तालिया ने तीखी नज़र से उसे घूरा और बारान को याद आया कि मिशन के वक्त उसका मोबाइल म्यूट पर था, इसलिए पता न चल सका। तालिया, मेरा मोबाइल म्यूट पर था, फिर मिशन से फ्री होकर मैंने तुम्हें कॉल की, तुमने रिसीव ही नहीं की। हाँ तो क्यों करती? जब आपके पास वक्त नहीं है तो मैं क्यों आपको वक्त दूँ? तालिया जानती थी वो मिशन पर गया हुआ और कॉल रिसीव नहीं करेगा, इसलिए जानबूझकर उसने कॉल्स की थी। इतने से वक्त के बदले में तुम्हें आज की पूरी रात वक्त दे सकता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे आपके वक्त की, और 1 मिनट से पहले मेरे कमरे से बाहर निकल जाए, ये सज़ा है आपकी। तालिया ने नज़रों ही नज़रों में उसकी तवज्जो दरवाजे की जानिब मबज़ूल करवाई। छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सज़ा? जी हाँ, एक रात कमरे से बाहर गुजारेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि बीवी की कॉल हर हाल में उठानी चाहिए। तालिया उसका बाजू पकड़कर दरवाजे की जानिब बढ़ने लगी। तालिया, तुम जुल्म कर रही हो अपने मासूम शौहर पर। बारान चुप करके निकल जाए, वरना सबको पता चल जाएगा कि मैंने आपको कमरे से बाहर निकाल दिया। लेकिन तालिया, शौहर को कमरे से बाहर निकालने पर गुनाह मान मिलता है। तालिया ने उसे दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया जब बारान उसके सख्त चेहरे की तरफ देखकर बोला, और बीवी की कॉल ना उठाने पर भी गुनाह मिलता है। एक रात बीवी के बगैर कमरे से बाहर रहेंगे ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी आपकी। इससे पहले वो आगे बढ़ता कुछ कहता, तालिया ने गुस्से में उसी वक्त उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया और साथ ही तालिया ने उस ग्रुप में मिशन डन का मैसेज कर दिया। मेरी जान क्या कर रही है? कमरे में आते ही ज़ियाम ने नूरे को पीछे से अपने हिसार में लिया, जो साइड टेबल के पास खड़ी अशीक के लिए फीडर बना रही थी। पीछे हो ज़ियाम, अभी फीडर गिर जाना था। नूरे ने गिरने से पहले ही जल्दी से फीडर को बंद किया। नूरे, अशी को मामा को दे आओ, फीडर वगैरह भी दे आना। इससे दूर ज़ियाम ने बेड पर झुककर अशी को उठाया। किस खुशी में? कल भी आपकी वजह से अशी बार बार रात को उठकर मुझे ढूंढता रहा। नूरे ने उसकी तरफ देखकर मुमानी जान ने उसे बताया था कि अशी उसके बगैर सही से सो नहीं सका। अशी के लिए एक न्यू बेबी भी तो लाना है, फिर अशी को मामा के बगैर सोना होगा। अशी के साथ खेलते ज़ियाम ने शरारती लहजे में कहा तो नूरे ने उसे तेज़ नज़र से घूरा। अभी एक औलाद मुझसे संभाली नहीं जा रही और आप दूसरी की प्लानिंग कर रहे हैं? नूरे का अंदाज सही सुलगने वाला था। क्यों भाई, मुझे तो एक प्यारी सी डॉल चाहिए। ज़ियाम ने उसकी जानिब देखते उसे अपने इरादे से बावर करवाया। फिलहाल के लिए ना अपने सारे इरादे ख़त्म कर ले और कमरे से बाहर निकल जाए। नूरे उससे अर्शमान को पकड़ती अपनी गोद में लिटाते ही फिडर पिलाने लग पड़ी। मैं क्यों जाऊँ कमरे से? ज़ियाम जल्दी से बेड पर गिरने वाले अंदाज में लेटा, क्योंकि कल पूरी रात आपने मुझे सोने नहीं दिया और अब बगैर बहस के कमरे से चले जाए और मामा आज मेरे साथ सोएगी।
नूरे अभी बोली ही थी जब हमारी जान कमरे में दाखिल हुई। ये नाइंसाफ़ी है नूरे। ज़ियाम का तो एकदम से चेहरा ही लटक गया। कोई नाइंसाफ़ी नहीं है ज़ियाम बेटा, मैं आज नूरे के साथ सोऊंगी और तुम अपने बाबा जान के साथ। हमारी जान आती ही उसके सामने जा खड़ी हुई। उन तीनों ने मिलकर प्लान किया था कि वो हमारी जान को बताकर जाएंगी, वो मना भी नहीं करेंगी और अर्शी को भी संभाल लेंगी। फिर अगर किसी को कुछ पता चला तो वो हमारी जान का हवाला दे देंगी। हाय अल्लाह, बाबा के साथ नहीं, कभी नहीं। वो तो पूरी रात मुझे नसीहतें करते रहेंगे। ज़ियाम ने बड़बड़ाते अपने सर को नफ़ी में हिलाया। चले जाए भी, अब पूरे बेड पर कब्जा कर रखा है आपने, हमने सोना भी है। नूर ने उसे घूरते हुए जाने का कहा तो ज़ियाम मुंह लटकाता हुआ उसे घूरते बेड से उठ खड़ा हुआ। बहुत बुरी तरह से उसके इरादों पर पानी फिरा था। नूरे को घूरते ही घूरते वो कमरे से बाहर निकला, जैसे कहना चाह रहा हो, बचो तुम अब मुझसे। वो बाहर निकल गया तो नूरे ने भी ग्रुप में डन का मैसेज कर दिया और खुद अशी को मानी को पकड़ाती हुई दरवाज़ा बंद करती तैयार होने के लिए चली गई। एक साथ उन तीनों की बीवियों ने उन्हें कमरे से बाहर निकाल दिया, जबकि आर्यान पाशा, जिसको अब समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, गेस्ट रूम में भी नहीं जा सकता था क्योंकि वो बारान की बहन के लिए तैयार करवा दिया गया था और बाकी सारे कमरे भी भरे पड़े थे। जब उसके जहन में टेरिस का ख्याल आया, नहीं, टेरिस पर सोना महफूज नहीं है। अगर उन दोनों में से किसी ने भी मुझे वहाँ पर सोते देख लिया तो मेरा बहुत मजाक बनाएंगे। आर्या ने जल्द ही अपनी सोच को झटक दिया, मगर अब उसके अलावा वो जाए तो जाए कहाँ। हाँ, पूल साइड एरिया की जानिब चला जाता हूँ, वहाँ कोई आएगा भी नहीं और सुकून से सो भी जाऊँगा। और हानम को तो मैं सुबह पूछूंगा। खुद से बड़बड़ाते हुए जल्दी से इर्द गिर्द नजरें दौड़ाता पूल एरिया की जानिब बढ़ गया। दूसरी जानिब बहरान खानज़ादा तो बाहर खड़ा बस अपने हाथ मसलता ही रह गया। इतनी बड़ी गलती तो नहीं थी जितनी बड़ी उसकी बीवी ने सजा दी थी। यूं यहाँ खड़ा रहकर वो दरवाज़ा भी नहीं बजा सकता था। जिसका दरवाज़ा बजाना था उसने तो खोलना नहीं था, अलबत्ता बाकी सबके दरवाजे खुल जाने थे। एक भी कमरा इस विला में खाली नहीं रहा। ये बीवियां शौहर को कमरे से बाहर निकालने से पहले क्यों नहीं सोचती कि वो बेचारे जाएंगे कहाँ, अब मैं कहाँ जाऊँ। सभी लौंडों की शादी हो गई सभी लौंडों की शादी हो गई है, किसी के कमरे में भी नहीं जा सकता। वो टेरिस पर तो हरगिज़ नहीं, इतना मच्छर होता है वहाँ पर। सो वलीमे में सुर्ख और सूजा हुआ चेहरा थोड़ी ना लेकर जाऊँगा। बारान ने अपना सर झटका और पूल साइड का जहन में आते ही उस जानिब बढ़ गया। तीसरी तरफ ज़ियाम शाह, जो अपने बाबा के कमरे में तो हरगिज़ नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने इरादा किया यहाँ हॉल में सोफे पर सोने का। सोफे पर लेटते ही वो जल्दी से अपनी आंखें मूंद गया। जब तकरीबन 10 मिनट बाद ही उसके कानों में कुछ आवाज़ें पड़ने लगी, जिसे सुन वो उन आवाज़ों की जानिब बढ़ा। बारान जैसे ही पूल साइड पर गया, उसने देखा आर्यान वहाँ मौजूद कुर्सी के साथ टेक लगाकर बैठा आंखें मूंदे हुए था। उसे तो इस वक्त अपने कमरे में होना चाहिए, ये यहाँ क्या कर रहा है। लगता है किसी को बीवी ने कमरे से बाहर निकाल दिया। बारान ने तंजिया टोंट मारा तो किसी की आवाज़ अपनी समातों से टकराने की बदौलत आर्यान ने आंखें खोलते रुख मोड़कर उसे देखा तो उसके सामने खड़ा अपने दांतों की नुमाइश करने लगा। तो आर्यान ने कर्ब से अपनी आंखें घुमाई। उनकी वजह से वो टेरिस पर नहीं गया था और बारान यहाँ पर भी आ टपका। मेरा छोड़, अपने बारे में क्या ख्याल है, कहीं तुझे तालिया ने कमरे से बाहर तो नहीं निकाल दिया। बगैर सुलगते आर्यान तंज से बोलता उस पर तंज कर गया तो एकदम से बारान का चेहरा ढीला पड़ता बेचारों वाला बन गया। हाय, लगता है तेरा भी यही सीन है। मेरी वाली ने तो आज एक कॉल ना उठाने की वजह से मुझे कमरे से ही बाहर निकाल दिया। बारान ने दुखी अंदाज में अपना दुख सुनाया तो आर्यान ने उसकी बात सुनते ही एक ज़बरदस्त कहकहा लगाया। ज़्यादा हंस मत मुझ पर, ऐसा ना हो तेरी बात सुनकर मुझे भी कहकहा लगाना पड़ जाए। बारान चिढ़कर बोला तो आर्यान संजीदा हुआ। तो पहले ही हंस ले, मुझे यकीन है तू बाद में भी छप्पड़ फाड़ कर हंसेगा। बारान उसके पास ही कुर्सी खींच कर बैठ गया तो आर्यान ने भी फ़कत हंसते हुए उसे कहा, अच्छा, ऐसी भी क्या बात है जो मैं पहले ही हंस लूँ। बारान ने तजस्सुस से उसे देखा तो आर्यान ने हानम का कारनामा उसे बताया। तो फिर सुन, हानम को लगता है हमारे कमरे में कोई जिन्नात का साया है, इसलिए वो पूरे कमरे में अगरबत्ती लगाकर धोनी दे रही है। आर्यान ने महज हंसते हुए बारान को बताया। फिर वाकई उसका एक शानदार कहकहा खुली फिजा में गूंजा। यार, अगरबत्ती से वो जिन्नात को भगा रही है या बुला रही है। बारान ने हंसते हुए अपने पेट पर ही हाथ रख लिया। उसका वाला वाकया ज़्यादा फ़नी था। अभी इससे पहले आर्यान उसके जवाब के तौर पर कुछ कहता, मगर उसी वक्त ज़ियाम चलता हुआ पूल साइड पर आया तो उसके जूतों की आवाज़ पर उन दोनों ने उसकी जानिब देखा।
उसे देखते ही उन दोनों का कहकहा बे-इख्तियार फिज़ा में बुलंद हुआ। तुझे भी तेरी बीवी ने कमरे से बाहर निकाल दिया क्या? उन दोनों ने एक साथ पूछा। तुझे भी क्या मतलब? तुम दोनों को भी तुम्हारी बीवियों ने निकाल दिया? ज़ियाम ने तफ्तीश से उन्हें देखते पूछा तो उन दोनों ने एक साथ इस बात में सर हिलाया और इस बार ज़ियाम का कहकहा खामोश फिज़ा में बुलंद हुआ। चल ज़्यादा फ्री मत हो और यहाँ आ, अब जब बीवियों ने कमरे से बाहर निकाल ही दिया है तो शोक मनाने की बजाय हम लोग पार्टी करते हैं। बाहरान के बोलते ही ज़ियाम ने उजलत में हामी भरी, जबकि नींद तो उन तीनों की आंखों से ही कोसों दूर थी। तो फिर हो जाए पूल पार्टी। आर्यन के जोर से कहने पर उन दोनों ने अपने सर को हाँ में जंबिश दी। चलो फिर जाकर फ्रिज से मैंगो और लेमन माल्ट लेकर आओ। पूल भी है, मैंगो भी है, तो क्यों ना मैंगो पार्टी हो जाए। आर्यन ने दोबारा से कहा तो बारान और ज़ियाम मिलकर किचन की जानिब बढ़ गए और आर्यन पूल के पास एक ज़बरदस्त माहौल बनाने लगा। दूसरी जानिब वो तीनों लशपश होकर बहुत एहतियात से अपने अपने कमरे से निकलती गैराज की जानिब आ गई, क्योंकि हानम ने उन्हें वहां आने को कहा था। नूरिन ने स्काई ब्लू मिनी फ्रॉक और नीचे कैपरी पहनी हुई थी, जबकि तालिया ने पर्पल लॉन्ग शर्ट के नीचे खुला ट्राउज़र पहना हुआ था और गैराज की जानिब आती हानम ने ब्लैक शॉर्ट शर्ट और वाइट खुला ट्राउज़र पहन रखा था। तीनों ही एक से बढ़कर एक लग रही थी। हानम जेरी को कॉल की, तुमने, वो आया नहीं अभी तक। हानम ने उन्हें बताया था तो वो लोग जेरी के साथ जाएंगी और वो उसे गाड़ी लाने को भी बोल देगी। हाँ, वो तो बाहर ही खड़ा है, तुम लोग आराम आराम से चलकर मेरे पीछे आ जाओ। हानम आगे आगे चलने लगी और वो दोनों पीछे पीछे, जबकि पूल साइड विला की बैक साइड पर था, इसलिए उन तीनों को ही ना पता चल सका। जब वो जल्दी से बाहर निकलती जेरी की लाई हुई गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी एक लग्जरी क्लब की जानिब बढ़ गई। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। इस वीक ये नावल ख़त्म हो जाएगा और बहुत जल्द मैं आपको बहुत ही नया, बहुत ही प्यारा सा नावल सुनाऊँगी इंशाल्लाह, जो रिक्वेस्टेड भी है और उसकी राइटर से परमिशन भी बहुत जल्दी मिल गई है। इसलिए मैं फ़ौरन से उस नावल को स्टार्ट कर दूँगी इस वीक को, इस नावल को फ़िनिश करके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।